All, let's discuss general solution and principal solution of trigonometric equations in this class. I have taken some questions from the NCERT textbook. The question is find the principal and general solution of the following equations. The first one is tan x equal to root 3. Before finding out the general and principal solution, let's understand what is principal solution and what is general solution. Principal solution is nothing but under some restrictions, under some interval. So कहाँ x मैच होता है रूट 3 को, वैसे मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब you will work under some restrictions. The restriction is the interval. The restriction is 0 to 2 pi. So between 0 and 2 pi, including 0 and 2 pi, कहाँ ये मैच होता है, x कौन से वैल्यूज़ को tan of that value root 3 बनता है. So that is called principal solution. The principal solution has an interval from 0 to 2 pi. So if I represent this in the graph, so from here to here, this is 0 and this is from here to one round. Okay, this is 0, this is pi by 2 and this is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi. सो जीरो से लेके एक राउंड सर्कल करने के बाद इधर कहाँ भी आपका मैच हुआ तो इस इंटरवल में 0 to 2 पाई में दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन अभी x minus 2 इक्वल टू सम 10 दे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट? तो x कहाँ मैच होगा? तो x होगा, ये 2 को इधर भेजे तो दिस इज 12. x 12 fill किए तो you will get this this equation will get satisfied. So that is nothing but the solution. In the same way you will get the solution here for tan x equal to root 3. Tan x equal to root 3, x कौन सा वैल्यू पे ये tan of that value will become root 3. That is nothing but your solution. I mean you have to find out the values of possible values of x. Cool. So they asked the principal solution and the general solution. The principal solution I have already told you, this is in between 0 से 2 pi तक, including 0 and including 2 pi. Cool. Let's calculate the principal solution. Let me erase this thing. Okay, let's take the first question. Tan x equal to root 3. Okay, tan x equal to root 3. I will suggest you some steps to solve these questions. पहला सिग्नेचर चेक करो, सिग्नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो मुझे लग रहा है इधर पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव के लिए tan पॉजिटिव कहाँ रहेगा? tan पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कौन से क्वाड्रेंट में? tan इधर थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट. कूल. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें एक x मिलेगा. सो उसका वैल्यू प्लस रूट 3 बनेगा. ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यू के लिए tan रूट 3 बनता है? फॉर दैट यू शुड नो द टेबल. सो tan, मुझे लग रहा tan x, मुझे पता नहीं tan का, मैं आई नो द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं tan x को, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं. साइन इज इन द न्यूमरेटर, ये ऊपर है, तो ऊपर साइन रूट 3 कब बनेगा? ये साइन रूट 3 कब बनेगा? हाँ, 60 डिग्री पे नहीं, साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 60 डिग्री लिख सकते हैं. सो ऊपर का रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, सो ये बनता है रूट 3. सो इट इज मैचिंग एट 60 डिग्री. So x क्या आया? 60 डिग्री. और if I write this in terms of radians, it will be pi by 3 radians. Cool. So first quadrant में 60 डिग्री को मैच किया. In the same way, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ मैं. प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. कूल. यस. सो
और आ सकता है क्या 0 to 2 पाई में स्टार्ट चेकिंग द क्वाड्रेंट्स. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वैल्यू मिला, हुआ काम खत्म. सेकेंड क्वाड्रेंट में आ सकता है क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में √3 यू कैन गेट द वैल्यू, बट यू कांट गेट इट इन पॉजिटिव. पॉजिटिव √3 यू कांट गेट. वाई? बिकॉज tan here is negative. So if you want to see the signatures of the trigonometric functions in quadrants, I have uploaded separate video, and go through that video and come back here. Cool. So in third quadrant ये भी नेगेटिव, ये नहीं नेगेटिव, सो इधर पॉजिटिव हो सकता है. कूल. सो पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. और पॉजिटिव वैल्यू कैसे मिलेगा तुम लोगों को? सो पहला जो कैलकुलेट किया है ना 60 डिग्री 5/3, उसको 180 पे ऐड करना है. दैट्स इट. सो सेकेंड वैल्यू क्या आता है? 180 + 60. दैट्स इट. सो ये बनेगा 240 डिग्री. इसको किसमें क्या रेडियन में लिखे तो ये बनेगा 4π/3. 6 4 ज़ा यस 4π/3 रेडियंस. दैट्स इट. सो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेगा π/3 एंड 4π/3 रेडियंस. दैट्स इट. सो ये हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन का. और लेट्स सी द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज tan x = √3. प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते वक्त हमें इंटरवल में काम किए हम, मगर जनरल सॉल्यूशन के लिए इट शुड मैच ऑल द पॉसिबल x. So there is no restriction, there is no 0 to 2 pi. It may be from 0 to infinity. Not I can't say 0 to infinity, it is from -infinity to +infinity. ये सभी वैल्यूज तुम लोग लिखने का इधर कहाँ, इसमें जनरल सॉल्यूशन पे. जनरल सॉल्यूशन पे यू हैव टू include all the values, all the possible values of x for which tan x √3 बनता है. ठीक है, वो कैसे करने का, उसके लिए मैं ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो ऑन tan x = tan अल्फा. कूल. सो ऐसे इक्वेशन तुम लोगों का रहा तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? x कैन बी, इट इज n pi प्लस अल्फा. n pi और 2n pi. सो क्या बनेगा इधर? n pi क्या 2n pi? इट इज n pi प्लस अल्फा. अल्फा क्या लेंगे तुम लोग? द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम प्रिंसिपल वैल्यू. मिनिमम प्रिंसिपल वैल्यू तुम लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या मिला है? दो वैल्यूज मिले. एक मिला है 5/3 एंड 4π/3. इन दोनों में से छोटा कौन सा, मिनिमम कौन सा? So that is 5/3. So x is n pi plus 5/3 is the, where n is integers, is the general solution. So if you see this in the graph, कैसे रहेगा? No, I will now make it clear, crystal clear that जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या रहेगा. ठीक है, अभी देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक वैल्यू मिला हमें, इधर कुछ होगा 60 डिग्री. 60 डिग्री को मैच हुआ, और इधर कहाँ 60 प्लस 180 प्लस 60 240 को मैच हुआ. ठीक है, 240 डिग्री को मैच हुआ. ये ऐसे सर्कल किए तो ऐसे आया. अभी एक सर्कल स्टार्ट करता हूँ मैं, ये सर्कल स्टार्ट करके इधर आया तो 60 डिग्री को मैच हुआ. ऐसे ही कंटिन्यू किया, इधर मैच आया, इधर मैच हुआ तो उसको भी इंक्लूड किया. वैसे सर्कल कंप्लीट करता हूँ और सेकेंड सर्कल स्टार्ट करता हूँ मैं, और सेकेंड सर्कल स्टार्ट किया तो और आया ये. इधर एक सर्कल कंप्लीट हुआ था, वो कितना बना था? 360 डिग्री बना था. वापस सर्कल रिपीट स्टार्ट किया, 360 प्लस 60 कितना बना? कितना? 360 प्लस 60 420 डिग्री कुछ बना. ठीक है, तो वैसे ही कंटिन्यू किया तो इधर आता है और इसको भी मैच होता है. ये कितना होता है? 360 प्लस 240, 36 प्लस 24 कितना होता है? 36 प्लस 24 600. ठीक है,
तो और 600 को कुछ मैच होता है, 36 40 600 को मैच होता है। सेकेंड सर्कल कंप्लीट करता हूँ और थर्ड सर्कल चलो करता हूँ। थर्ड सर्कल कहाँ से चलो होगा मेरा, 720 से। 720 प्लस 60, 720 प्लस 60 कितना हुआ, 720 प्लस 60 780 डिग्री को और मैच होता है। वैसे कंटिन्यू किया तो और इधर मैच होता है। ठीक है, देखिए कितना पॉसिबल वैल्यूज है। ऐसे ही मैं इनफाइनाइट सर्कल डाल सकता हूँ, इनफाइनाइट राउंड मार सकता हूँ, तो उन सब के लिए ये मैच होने का वैसे इक्वेशन हम लिखे थे। कहाँ, जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, सो n1 लिए तो ये मैच होगा, n0 लिए तो फर्स्ट n0 लिए तो 5/3 को मैच होगा, n इंटू 0, 0 इंटू पाई 0 प्लस 5/3, 5/3 को मैच हुआ। n1 लिए तो n पाई 1 इंटू पाई, पाई प्लस 5/3 240 को मैच हुआ। n2 लिए तो कितना था, 2 पाई प्लस 5/3, 2 पाई मतलब 360, 360 प्लस पाई/3 60, 420 को मैच हो रहा। सो वैसे ही n4 लिए तो ऐसे कंटिन्यू होता है। ये देखिए n इंटीजर है, तुम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, इस सभी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे आए नहीं, तो अभी नीचे से ऐसे भी आ सकते हैं ना। सो दैट इज कॉल्ड, लेट मी इरेज दिस थिंग। ये राउंड सर्कल को इरेज करता हूँ सो दैट आई विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर फॉर यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, इसके लिए थोड़ा इधर ज़्यादा टाइम लूँगा मैंने। ठीक है, ये 60 को मैच हो रहा है और 240 को मैच हो रहा है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज आए तो अभी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल पे आ सकते हैं, तो नेगेटिव ऐसे आए तो कहाँ मैच होगा ये, n -1 पुट करो, इधर पुट कर सकते हैं ना, n इंटीजर लिए है, -1 पुट किए तो ये -5 प्लस 5/3 कितना हुआ, 180 -180 प्लस 5/3, सो -120 डिग्री हुआ। तो इधर से आए तो ये 90 प्लस ये कितना 240 पे, इधर पे 60 है, इधर बचा कितना 30, तो ये इधर से ऐसे आए तो ये एंगल बनता है -120 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो 240 डिग्री मैं गलत लिखा, मतलब दिख नहीं रहा है, गलत नहीं है, ऐसे मुझे ये जो है इधर आना चाहिए था। ओ तेरी, क्या हुआ, ये जो लाइन है नहीं, इरेज करूँगा, इसको इरेज करके और एक बार, ठीक है। ये जो 240 का लाइन था, इधर एक लाइन था मेरा, ओके, 240 का लाइन कुछ ऐसे इधर आता है 240 का, तो नेगेटिव साइड से आया तो ये कहाँ मैच हो रहा, 120 डिग्री, -120 डिग्री। क्यों, नेगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वैसे ही आप कंटिन्यू किए तो ये इधर आके मैच होगा। ये कितना बनेगा, इधर ये बनने के लिए टेक n एज -2 पाई प्लस 5/3, तो -2 पाई मतलब 360, -360 प्लस 5/3 -300, करेक्ट। तो ऐसे ही आप लोग ऐसे आए तो ये 300 पे मैच होगा, -300 डिग्री पे मैच होगा। मतलब दिस एक्सप्रेशन इज, it's a general expression. It will match all the possible values for which tan x is √3. So to derive this equation, I have uploaded a separate video. Go through that video. I have shared this video link in the description box. Okay. I think I made the things very clear. Got it? So the answer क्या होगा आप लोगों का, x equal to n pi plus pi/3 where n equal to integers. This is very important. That's it. ये सभी कुछ लिखना ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही इनफ है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज secant x equal to 2. Cool. Okay, the second question is secant x equal to 2. So secant x 2 कब बनेगा, इसको आप प्रिंसिपल का फाइंड करना है और जनरल का, प्रिंसिपल एंड जनरल दोनों फाइंड आउट करना है नहीं। सो आई विल स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली नाउ जनरल सॉल्यूशंस। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुझे secant x का पता नहीं, सो तो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू 1/cos x, 1/cos x लिख सकता हूँ ना, कूल, ओके। ये बना cos x इक्वल टू 1/2, इधर उधर ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो cos x ये मुझे लग जैसे कैसे दिख रहा है, cos x इक्वल टू cos अल्फा जैसे लग रहा,
कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल ये सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ मैं सेपरेट वीडियो में. प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, यू नो, फर्स्ट गो थ्रू दोज वीडियोज एंड देन कम बैक हियर. ओके, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा रहा तो हम एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा लिख सकते हैं. ठीक है कि नहीं? यू शुड नो दिस थिंग्स. करेक्ट? क्या लिख सकते हैं? 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा लिख सकते हैं. ओके, तो तुम लोग ये अल्फा कैलकुलेट करने का ये क्या था, कॉस एक्स इक्वल टू 1/2. ये कॉस एक्स इक्वल टू ये अल्फा मतलब स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू. सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या बन सकता है, ये पॉजिटिव 1/2. कॉस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव 1/2. कॉस एक्स 1/2 कब बनेगा? हाँ, टेबल याद है ना आपको? तो कॉस एक्स 1/2 बनेगा एट pi/3 and pi/3 and see again the same thing. कॉस पॉजिटिव कहाँ रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा कॉस, और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा नहीं रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा नहीं रहेगा. तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का 5/3 कवर हुआ 60 डिग्री. करेक्ट है? ये 60 डिग्री भी लिख सकते हैं. 5/3 एंड 60 डिग्री बोथ आर सेम. दिस इज इन डिग्री एंड दिस इज इन रेडियन. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी मैच करने का ना. फोर्थ क्वाड्रेंट को में कहाँ मैच होता है, तो उसके लिए तुम लोग क्या करने का, 360 माइनस 60 करने का. इट विल मैच एट 300 डिग्री. आर कितना होता है, 5 pi/3 रेडियन. 5 इंटू 5/3 60, 6 5 300. करेक्ट. सो ये दोनों क्या है, pi/3 एंड pi/3. दीज आर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ, pi/3 रेडियन एंड pi/3 रेडियन. दैट्स इट. सो अभी जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे. जनरल सॉल्यूशन के लिए ऑलरेडी बताया हूँ मैंने, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा फॉर्मेट है ये. कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा. कॉस अल्फा क्या लेंगे तुम लोग, मिनिमम, जो मिनिमम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर उसको लेना है. तो वैसे लिखे तो क्या बनेगा, एक्स है ये इक्वेशन 2n पाई प्लस आर माइनस pi/3 रेडियन. दैट्स इट, दैट्स इट. इसके लिए 3 मार्क्स को होगा तुम लोगों को ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में. ठीक है? आई थिंक आई मेड दिस क्लियर. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट इन ग्राफ. यू नो, ट्राई एनालाइजिंग पुटिंग वेर n इज इंटीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. यू हैव टू मेंशन इट एज इंटीजर. सो माइनस वैल्यूज भी आएंगे इधर. ठीक है? ठीक है. तो अभी आप लोग देखे तो देखिए 2n पे प्लस आर माइनस 5/3 कॉमन सेंस है क्या. 2n प्लस 5/3 किए तो 2n पाई ऑलवेज इधर आएगा. ठीक है, 2n पाई. सो पाई का इवन मल्टीपल हमेशा इधर आएगा. सो 0 पे इधर आएगा, 2 पाई पे इधर आएगा, 4 पाई पे वापस इधर आएगा, 6 पाई पे इधर आएगा, 8 पाई, 10 पाई. गेटिंग मी राइट? सो इसका प्लस अल्फा माइनस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट. दैट्स इट. वही तो लिखे हैं हमने. कॉमन सेंस हो रहा है कि नहीं? कूल. सो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन एंड दीज टू वैल्यूज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन. Let's see the next question. The next question is cot x equal to minus root 3. क्या है क्वेश्चन? cot x equal to minus root 3. ओके, मुझे cot x का पता नहीं है तो आई विल अगेन कन्वर्ट दिस इनटू cos x बाय sin x equal to minus root 3. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये cot x को मैं 1/tan में लिखूंगा. ऐसे भी कर सकते हैं. You can try this option. If you don't get it, no, please comment in the comment section. I will solve this for you. 1/tan x equal to minus root 3. This implies tan x equal to minus 1 divided by root 3. कुछ नहीं यार, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो अभी देखो tan कहाँ माइनस बनेगा, कौन से कहाँ माइनस बनेगा, मतलब आई मीन टू आस्क कौन सा क्वाड्रेंट में ये माइनस बनेगा. tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस नहीं बन सकता, सेकेंड क्वाड्रेंट में यस इधर माइनस बनता है. tan का लिख रहा हूँ. tan सेकेंड क्वाड्रेंट पे माइनस बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे नहीं बनता. सो फोर्थ क्वाड्रेंट पे माइनस बन सकता है. ठीक है? तो अभी तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखूँ.
प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी तुम लोगों को पता चला कि tan मुझे नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आंसर तुम लोगों को कहाँ आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब फ्रॉम 90 टू 180 के बीच में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब फ्रॉम 270 टू 360 के बीच में। तो देखें क्या होता है, tan x इक्वल टू 1/√3 माइनस 1/√3। 1/√3 कहाँ मैच होता है? यस, साइन कहाँ 1 बनता है? नीचे। tan इज साइन बाय कॉस, नहीं, कॉस नीचे है, तो वो √3 कब बनेगा? यस, 30 डिग्री पे। कूल। सो ये x 30 डिग्री पे होता है। ये नेगेटिव साइन निकाले तो tan 30 डिग्री पे मैच होता है, मगर 30 डिग्री मुझे मैच नहीं होता क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव tan इधर रहने का, तो ये 180 माइनस 30 डिग्री। सो x बनेगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो ये बनेगा 150। सो इसको आप इफ यू राइट दिस इन रेडियंस, दिस विल बिकम 5π/6। ये कैसे लिखा पता चला तुम लोगों को? मैं ये सिग्नेचर निकाल के इसको मैच किया। tan x 1/√3 कहाँ बनेगा? 30 डिग्री पे, मगर 30 डिग्री पे ठीक है, 30 डिग्री पे मुझे tan 1/√3 बनता है, मगर मुझे -1/√3 चाहिए। -1/√3 के लिए मैं क्या करूँगा? 180 माइनस ये थीटा करूँगा। आपको अलाइड एंगल्स याद होगा, अलाइड एंगल्स। Allied angles is very important chapter to make these to solve these kind of questions. So using allied angles I wrote these values, a 150 degree or 5π/6 radians, both are same. One more x क्या होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में एक आएगा ना, उसको 2π माइनस लिखो, दैट्स इट। 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये क्या बना? 330 डिग्री, दैट्स इट। और इसको रेडियन में लिखे तो ऐसे ही लिखे तो आंसर हुआ। डिग्री में भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कन्वर्शन कितना फास्ट कर सकते हैं हम करके बोल रहा हूँ। ये देखिए 11 × 3 होता है, नहीं 11 × 3, 3 मतलब 5π/6, 11π/6, दैट्स इट। 11 3 = 330, करेक्ट। सो ये हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मुझे लगता है कि दो वैल्यूज मैच होंगे, सही कि नहीं? दो मिलेंगे आपको वैल्यूज, ठीक है। ये हुआ क्या? cot x इक्वल टू -√3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी मैं निकालूंगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब, जनरल सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ आपके साथ, किया हूँ कि नहीं? हाँ किया हूँ। tan x इक्वल टू tan अल्फा का, tan x इक्वल टू tan अल्फा का मैंने ऑलरेडी किया हूँ। इसका सॉल्यूशन बनता है x इक्वल टू, ये ऐसा रहे तो x क्या बनता है इसका? क्या बनता है? tan का क्या होता है? ये होता है n π प्लस अल्फा। क्या होता है? n π प्लस अल्फा। तो ये अल्फा क्या लेंगे तुम लोग? अल्फा मिनिमम वैल्यू किसमें? 150 और 330 में मिनिमम छोटा कौन सा है? तो 150 डिग्री। तो x बनता है x इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा, अल्फा के जगह में 150 डिग्री, दैट इज π/6। सो वेयर n इज इंटीजर्स, दैट्स इट। सो ये हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। आई थिंक आई एम मेकिंग थिंग्स वेरी क्लियर। जनरल सॉल्यूशन मतलब दिस विल इंक्लूड ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द स्पेसिफिक इक्वेशन बिकम्स ट्रू. That equation will get satisfied for those all x values. That is called general solution. Principal solution मतलब 0 to 2π के बीच में, 0 to 360 डिग्री के बीच में उतना ही तुम लोग देखने का। उधर जिधर जो वैल्यू को मैच होता है that will become principal solution. Cool. Let me solve the last question. That is cosecant x equal to -2. So क्या है क्वेश्चन? कोसेकेंट x इक्वल टू -2. सो मुझे कोसेकेंट के साथ खेला नहीं आता, सो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू साइन. कोसेकेंट x कैन बी रिटन एज 1/sin x इक्वल टू -2. दिस इम्प्लाइज
साइन एक्स इक्वल टू -1/2। सिंपल क्वेश्चन मगर थोड़ा नेगेटिव दिया है, उधर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो साइन आप लोगों को कहाँ माइनस होता है, कौन से क्वाड्रेंट में? तो फर्स्ट में नहीं होता, सेकंड में नहीं होता। साइन डिपेंड्स ऑन वाई एक्सिस, वाई इज पॉजिटिव ईयर, सो साइन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वाई एक्सिस। सो वाई कहाँ नेगेटिव रहता है, उधर साइन एक्स नेगेटिव रहता है। सो इधर नेगेटिव है और इधर नेगेटिव है, ये साइन एक्स का, ठीक है। तो कहाँ आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखते हैं कौन सा वैल्यूज आता है। पहला देखो, ये सिग्नेचर निकाल के ट्राई करो। साइन एक्स इक्वल टू 1/2 कहाँ बनता है, तो कहाँ मैच होता है साइन एक्स इक्वल टू 1/2? यस, 30 डिग्री पे। मगर मुझे 30 डिग्री मैच नहीं होता क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए। 30 डिग्री इधर मतलब 180 प्लस 30 डिग्री करने का और 360 माइनस 30 डिग्री करने का, वैसे कैलकुलेट करने का। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं? 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री किया तो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आता है? 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री आता नहीं, दिस इज 210 डिग्री। और इसको रेडियन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं इसको? 7π/6। ये कैसे लिख रहा हूँ पता चल रहा है आपको? 7π/6। ये देखिए 210 किसका मल्टीपल है यार? 3 7 जा 7 3 जा, करेक्ट। 7 इंटू 30 मतलब π/6, वैसे लिखता हूँ, ठीक है। एंड सेकेंड प्रिंसिपल वैल्यूज ये इधर, ये इसको ये कैसे आता है? 360 माइनस दी एक्स वैल्यू फॉर विच द साइन एक्स इज 1/2, दैट इज 360 माइनस 30 डिग्री। सो ये क्या बनता है? 330 डिग्री। सो इसको रेडियन में लिखे तो क्या है? 11π/6। कैसे लिख रहा हूँ 11π/6? π/6 मतलब 30 इंटू 11 330, right? So these two are called a principal solution. And what is the general solution? जनरल सॉल्यूशन के लिए साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या है? एक्स इज n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा is the equation for sin x equal to sin alpha. This also I have solved in my previous videos. So where n is integer, n belongs to integer. So उसके हिसाब से हम लिखे तो ये अल्फा क्या है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 3 क्वेश्चंस। अल्फा इज द छोटा जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो छोटा है वही वैल्यू, ठीक है। तो ये बनेगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा, मतलब छोटा वैल्यू कौन सा? 210 और 330 में 7π/6, दैट्स इट, where n belongs to I. So this will cover all the possible values of x for which sin x is equal to cosecant x equal to -2. That's it. I think I made the points very crystal clear. Cool. Okay, after solving these questions, let me proceed for the next questions. That is, which is that question? Where are these? Find the general solution for each of the following. They will give some equations, and for those equations you have to find out the solution. So तुम लोगों को अभी मैं ऑलरेडी बताया कि अभी x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रहा तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? सॉल्व दिस क्वेश्चन इक्वेशन मतलब तुम लोग क्या करेंगे? यू विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, राइट? इन द सेम वे विल कैलकुलेट फॉर दिस आल्सो। दिस इज आल्सो, these are trigonometric equations. This were a quadratic equation in terms of x, ठीक है। तो वैसे सॉल्व करेंगे इसको भी। पहला क्वेश्चन लूँ मैंने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर से इसको इधर लूँ, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो ये cos c माइनस cos d जैसे लग रहा है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? तो वही cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस
कॉस कॉस कैंसर, ये बनता है -2 टाइम्स c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी इज 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाई 2 3x इंटू -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, c माइनस 3 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 इज x इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है, ये ऐसे बना। तो ये लग रहा है आपको इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आता तो पता है x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस सम 3 इज इक्वल टू 2 आया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 सॉल्व किया तो तुम लोगों को ऐसे आता था एक कंडीशन पे। तभी तुम लोग क्या करते थे, x इज क्या करते थे, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वेट करके x वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -3। ठीक है नहीं, सही है नहीं? तो वैसे ही हम इधर कैलकुलेट करेंगे। ओ इसको एरेज करता हूँ, डिलीट, इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो इन द सेम वे -2 कांट बी 0, सो आइदर साइन 3x इज 0 और साइन x इक्वल टू 0। सही, ये करेक्ट किया हमने, cos c माइनस cos d फॉर्म, cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन a साइन b माइनस cos a cos b कैंसिल, हाँ करेक्ट है। ओके, अभी साइन 3x इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, साइन x इक्वल टू 0 रहा तो x क्या क्या बन सकता है, x बन सकता है n पाई, वेर n इज इंटीजर्स, दैट्स इट। सो साइन 3x इक्वल टू 0 रहा तो 3x क्या क्या बन सकता है, n पाई बन सकता है। सो x 3x इक्वल टू n पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज n पाई बाई 3, दैट्स इट। और एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इधर x इक्वल टू n पाई। तो दीज टू आर दी क्या, general solution of the first question, correct? Let me verify this question with the answer. So क्या बना, ये बना करेक्ट है, x इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इक्वल टू n पाई, दैट्स इट। सो ये दोनों में से एक क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। तुम लोगों को x 2 आते थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए तो वैसे ही x द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर इज, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर इज दिस हैव टू यू गाइज हैव टू राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, n क्या है करके। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज cos 3x प्लस cos x, इसको लिखेंगे नीचे cos 3x प्लस cos x, तो नीचे पेज नहीं है क्या, ओके तो इसको मैंने कॉपी, इसको इरेज करूंगा। क्वेश्चन क्या है, cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। हाँ, इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे सेम, कैसे, cos c माइनस cos c प्लस cos d जैसे लग रहा है। cos c प्लस cos d फार्मूला क्या है, cos c प्लस cos d, ये फार्मूले के लिए मैं अलग वीडियो बनाया हूँ, तुम लोगों को गो थ्रू दैट वीडियोस टू डिराइव दिस फार्मूलाज, तभी के तभी तुम लोग डिराइव करके इनको ला सकते हैं। मेमोराइज कर, आई डोंट सजेस्ट यू टू बाय दिस वन, दिस फार्मूलाज, ट्राई टू डिराइव, जहाँ चाहिए उधर डिराइव करने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, इसका बनता है, तो इसमें cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो इसको ऐड किए तो साइन a साइन b कैंसिल होता है, ये बनता है 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, दैट्स इट। सो उसके हिसाब से मैं लिखा, तो इन दोनों को cos c प्लस cos d फॉर्म में लिखूँ तो ये बनता है 2 cos c प्लस d 3x प्लस x 4x डिवाइड बाई 2 2x इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस x 2x डिवाइड बाई 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, दैट्स इट।
सो इसमें से मुझे cos 2x कॉमन लग रहा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक cos 2x कॉमन लिया, तो ये 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर ये दिस इज 0 और दिस इज 0, सो cos 2x इज 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये cos 2x मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, cos x इक्वल टू 0 रहा तो x क्या क्या बन सकता है, x क्या क्या बन सकता है, cos x 0 रहा तो थिंक एंड आंसर, cos x 0 रहा तो क्या क्या बन सकता है, ये बन सकता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, करेक्ट। सोचिए, सो ऑड नंबर ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए cos 0 बनेगा, सही कि नहीं, इवन मल्टीपल के ये 1 बनेगा, तो ये बनेगा 2x इक्वल टू, ये x वैल्यू इधर cos x इक्वल टू 0 पे x वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लेता था, अभी 2x की जगह में 2x है, 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सो इसका आंसर बनेगा x इक्वल टू, ये 2 नीचे गया तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4, वेर n इज n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और एक कंडीशन है वो ये भी सॉल्व करने का ना हम, ये 2 cos x इक्वल टू 1 को उधर भेजे तो 1 ये हुआ, ये दिस इंप्लाइज cos x इक्वल टू 1/2, cos x 1/2 कहाँ बनेगा, ये दिस इज ऑफ द फॉर्म cos x इक्वल टू cos अल्फा, राइट। सो x क्या क्या बन सकता है, दिस इज 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा, आई थिंक करेक्ट, राइट। सो x बनता है इधर, इसका नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा कहाँ मिनिमम प्रिंसिपल वैल्यू करके समझाया था, याद है, तो ऊपर कैलकुलेट किए थे हमने ऐसे वैल्यूज को। cos x 1/2 कब बनता है, एट अ 60 डिग्री, यस दिस इज 60 डिग्री पाई बाई 3, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज either this or this. I think I am making things very clear, right? Cool. Let's see the next question. Next question is sin 2x plus cos x equal to 0. ओ तेरी अगेन ब्लैंक नहीं लिया क्या मैंने, तो इसको क्या करूँगा, इसको इरेज करूँगा, अभी के अभी बैंक लेके बैठूँगा क्योंकि और एक क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2x प्लस कॉस एक्स, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ये नहीं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, ये सिंपल लग रहा है मुझे यार। तो साइन 2x, ऐसे क्वेश्चंस को अलग देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में एक cos 3x cos x cos 2x सेम कॉस में ही थे, सेम टाइप में थे, ये कॉस में रहा तो सभी कॉस में ही थे। अभी नीचे का इसके पहले का क्वेश्चन cos 4x cos x, ये दोनों भी कॉस में थे, सेम टाइप पे थे, तो इनको भी सेम टाइप में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिखूँगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँगा। हाँ, अभी मुझे कुछ कॉमन लेने आ रहा है तो उसको मैं 0 को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे इससे दिख रहा है कि cos x को कॉमन ले सकता हूँ मैं, लिया तो क्या हुआ है 2 sin x, इधर बचा, इधर क्या बचा +1 इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos x 0 कहाँ बनता है, अभी तो डिस्कस किया यार हमने, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे 0 बनता है, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दैट्स इट, खत्म हुआ। और इसका देखेंगे, इसको फर्दर इफ वी सॉल्व इट, ये और कंटिन्यू होगा, फर्दर इफ वी सॉल्व इट sin x इक्वल टू 2 sin x इक्वल टू -1 sin x इक्वल टू -1/2। तो sin x इक्वल टू साइन अल्फा का मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, ये सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, x क्या बनता है n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा। अल्फा क्या है, मिनिमम वैल्यू इन द प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
सो एन इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, इसको -1/2 कहाँ बनता है, साइन नेगेटिव कब बनती है, सोचिए, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव, साइन एक्स कहाँ बनता है, इधर और इधर नेगेटिव बनता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यू का मैच होता है, उसके लिए मैं क्या बताया था, ये सिग्नेचर निकालो, ये सिग्नेचर मतलब प्लस माइनस निकालो, 1/2 उतना ही देखो, x 1/2 कब बनता है, 30 डिग्री पे, तो तुम लोग 180 - 30 डिग्री, 360 - 30 डिग्री दे करने का, दैट्स इट। तो दो वैल्यू मिला तुम लोगों को, उसमें से तुम लोग अल्फा कौन सा लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे नहीं, तो वो क्या बनता है, 180 डिग्री - 30 डिग्री, 180 - 30 डिग्री क्या कितना बनता है, 180 डिग्री, सॉरी यार 180 डिग्री प्लस होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू कैसे मिलता है मुझे, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो किए तो क्या होता है 210 डिग्री, ठीक है। तो x बनता है n पाई, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 210 डिग्री, ये कैसा आया 180 प्लस 30 डिग्री। सो अल्फा क्या बना, n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा 210 डिग्री, इसको रेडियन में लिखो क्योंकि पाई करके लिख रहे हैं हम, तो रेडियन में लिखा तो ये 7 π/6, where n belongs to integers, that's it. This is the general solution of these two are the general solution of this equation। मतलब अभी बताऊंगा, सुनिए। तो x में अब n को एक 0 नहीं तो 1 पुट करके, अभी दिखाऊँ आपको मैंने, अभी 0 करके पुट करके 0, अभी n इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या बनेगा x, ऐसे मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन लिए बता रहा हूँ आपको मैं, n 0 पुट किया तो ये बनेगा π/2, तुम लोग π/2 पुट करो इधर, यू विल गेट आंसर 0। सो साइन ऑफ 2 × π/2, साइन ऑफ 2 × π/2 क्या बनेगा, ये साइन पाई बनेगा, साइन पाई कितना 0 प्लस कॉस ऑफ π/2 0, सो 0 + 0 इज 0, मैच हो रहा है। वैसे ही n की कौन सा भी वैल्यू डालो तुम लोग, यू विल दिस इक्वेशन विल गेट सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब इसका मतलब क्या, दोज ऑल वैल्यूज ऑफ x आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, गॉट इट, कूल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकेंड स्क्वायर 2x = 1 - tan 2x, क्या था क्वेश्चन, सेकेंड स्क्वायर 2x = 1 - tan x, 1 - tan 2x, कूल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे सेकंड का पता नहीं है, मुझे tan का पता है, साइन का पता है, कॉस का पता है, तो आई विल ट्राई टू कन्वर्ट देम इन नोन फॉर्म्स। सो सेकंड को क्या कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको सेकंड सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इन द सेम वे सेकेंड स्क्वायर 2x को मैं 1 + tan स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। ये क्या बना, 1 - 2x बना, ये 1 1 कैंसिल हुआ, क्या बना ये tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू -tan 2x बना। सो एक tan 2x और ये स्क्वायर गया तो क्या बचा, ये tan 2x = -1। तो इसका सॉल्यूशन लिख के छोड़िए, दैट्स इट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अरे यार लाइन स्ट्रेट ही नहीं बनता, हाँ अभी बना। अभी tan कहाँ माइनस होता है, tan नेगेटिव कहाँ रहता है, tan नेगेटिव कहाँ रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर मिलेंगे आपका, वो क्या, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा। वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो छोटा है वो वैल्यू तुम लोग एज अ अल्फा लेने का, ठीक है। तो कैसे लेंगे, अभी मुझे पता चला सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में करके, तो कौन सा वैल्यू को लेने का उसका, तो उसके लिए तुम लोग ये सिग्नेचर निकालो, उसका नेगेटिव साइन निकालो और वो वैल्यू उतना ही देखो। 1 कहाँ मैच होता है, 45 डिग्री पे, tan ऑफ 45 डिग्री पे मैच होता है। तो इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में 45 कैसे मिलेगा तुम लोगों को, 180 - 45 मिलेगा। इसका ऊपर कैसे आते हो, 180 - थीटा करते हो ना, 180 - 45 डिग्री करने का, तो क्या आता है, ये वैल्यू 180 - 45 आता है और इधर का वैल्यू 360 - 45 आता है। मगर इसमें से छोटा वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू ना छोटा वैल्यू, तो इसको लेने का, ये 180 - 45 मतलब 135 डिग्री।
अल्फ़ा बना 135 डिग्री। तो इसको अल्फ़ा कहाँ लिखने का तुम लोग, मैं बताया था तुम लोग को tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा रहा तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, सही कि नहीं। tan का क्या बनेगा n पाई प्लस अल्फ़ा। ओके, तो अभी अल्फ़ा मिला और आपको जनरल इक्वेशन भी पता है, तो ये इसका आंसर बना 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा कितना 135 डिग्री। 135 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 पाई बाई 3 इंटू 45 डिग्री, दैट्स इट राइट। ओके, सो इसको x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, ये 2 को इधर भेजूंगा, ये डिवाइड होगा ना, प्लस 3 पाई बाई 8 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दैट्स इट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ this equation. I hope I made these all questions very clear, correct, right? n pi by 2 plus 3 pi by 2 where n belongs to integers. So ये समझिए tan 2x इक्वल टू -1, ये -1 को मैंने 135 कैसे लिया, पहला सिग्नेचर लिया मैंने, सिग्नेचर कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, मैं सेकंड क्वाड्रेंट का उतना ही लूँगा। क्यों उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट का लूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए लूँ मैं, छोटा जो वैल्यू है वो अल्फ़ा बनता है। सो इन दोनों से छोटा वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट का उतना ही, सो आई एम कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू। सो सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू -1 कहाँ मैच होगा, उसके लिए मैं सिग्नेचर निकाला, 1 को उतना ही कंपेयर किया, 45 डिग्री पे मैच होता है, उसको 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूँ मैंने। तो 180 माइनस 45 डिग्री क्या होता है, 135 डिग्री होता है। वैसे मैं इसको 3 पाई बाई 4 को निकाला, ठीक है। आई थिंक आई मेड इट वेरी क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।